Good morning, smart learners. How are you? Hope you all are fit and healthy. I always pray for your well being. Let's pray to God and thank Him for whatever He has given to us. All of you, join your hands for morning prayer. सिमरन से मन कर्म से जीवन इस जग को महकाए हम ज्ञान और कर्म के दो पंखों से आगे बढ़ते जाए हम सिमरन से मन कर्म से जीवन इस जग को महकाए जब सोचे सबका भला जब देखे सबके गुण देखे मीठा मीठा बोले सबसे सबके मन को भाए हम सिमरन से मन कर्म से जीवन इस जग को महकाए हम इस जग को महकाए हम इस जग को महकाए हम I welcome you back in today's virtual class of EVS. Students, today we will do chapter number 22, Our Environment Part 3. In our two previous videos, we have discussed about environment, types of environment, pollution and its different types. Let's revise the important points of the chapter. The earth is the home to all living and non-living things. हमारी जो ये अर्थ है ये सभी की ये एक होम है, चाहे वो लिविंग थिंग्स है और चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स मालूम है ना आपको क्या क्या होते हैं? यस, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आती है बेटा? एयर, वाटर, सनलाइट, हाउसेज, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी नॉन लिविंग थिंग्स में। Environment means everything that surrounds us. Environment का क्या मतलब होता है? Environment का मतलब होता है everything that surrounds us. हर वो चीज़ जो हमारे चारों ओर है वो environment बनाती है। Environment can be natural और man-made. Environment natural होते हैं या man-made होते हैं। Natural environment में क्या आएगा बेटा? Forest, mountains, hills, river, ये सब क्या है? Natural environment है। और मैनमेड इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस। बेटा हमने पढ़ा था पोल्यूशन के बारे में। पोल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज पोल्यूशन? पोल्यूशन इज मेकिंग इन्वायरमेंट डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इन इट। जब हम अपने इन्वायरमेंट में हार्मफुल और अनवांटेड थिंग्स डाल देते हैं उससे हमारा इन्वायरमेंट गंदा हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं पोल्यूशन। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। वो कौन कौन से हैं बेटा? नंबर 1 एयर पोल्यूशन, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन, नंबर 3 लैंड पोल्यूशन एंड नंबर 4 नॉइज पोल्यूशन। 4 तरह के पोल्यूशन हमने पढ़े कि कैसे होते हैं। एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। और हम अपने इन्वायरमेंट को अगर चाहते हैं कि वो बिल्कुल सही रहे, then what should we do? We should grow more and more plants. We should not use plastic bags. We should use clean fuel like CNG in vehicles and LPG in kitchen. And we should use dustbins to throw the garbage. तो इस तरीके से हम अपने environment को साफ रख सकते हैं। This was all about chapter number 22, Our Environment. Now enjoy the animation of this chapter. After that we will discuss its exercise part and we'll do activities. Chapter 22, Our Environment. The earth is home to all the living and non-living things.
The living things include human beings, animals, and plants. The non-living things are land, air, water, soil, buildings, houses, etc. The living and non-living things which surround us form our environment. Actually, environment means everything that surrounds us. There are two main parts of the environment, the natural and the man-made. The natural environment is formed by nature. The man-made environment is created by the human beings by changing the natural environment. Why do human beings change the natural environment? The human beings change the natural environment for their own benefit. Men need more places to live and more food to eat. In one sense, human beings need more comfort, therefore, men change natural environment. In the process of changing natural environment, human beings abuse environment and make it dirty. This is called pollution. Smoke from burning of fuels, other harmful things and chemicals enter into the environment, making it polluted. Generally, there are 4 types of pollution. These are air pollution, land pollution, water pollution, and noise pollution. Air pollution. Smoke is the main cause of air pollution. It is created by the burning of fuels like coal and petroleum. It makes the air dirty and causes breathing problems. Other sources of air pollution are smoke from factories, sandstorms, volcanoes, forest fires. Even the bursting of crackers on festivals and marriages causes air pollution. You should not burst firecrackers. Land pollution. People throw waste from their houses on roads and in parks. This makes the environment dirty and it creates unsanitary conditions. The soil can be polluted by the use of pesticides and other harmful chemicals. The land pollution can cause many diseases and destroys the natural beauty. Water pollution. Water pollution occurs when dirty and harmful things are thrown in the fresh water, rivers and seas. Some people wash their clothes and clean the utensils in ponds and rivers. We also throw waste materials from factories and toilets, harmful chemicals and other dirty things into water. The polluted water can make us sick and cause the death of water animals. Noise pollution. Loud sound is harmful for living things. It can damage our hearing system. It is created by loudspeakers, loud music, television, horns of vehicles, bursting crackers, machines in the factories, aeroplanes, etc. We should speak softly in groups. To avoid loud sound, we can use earplugs. Taking care of environment. To take care of our environment, we should plant more trees in our neighborhood, not use plastic bags. Throw the waste materials only in the dustbins, not burst firecrackers during festivals. Use clean fuel like LPG in kitchen and CNG in vehicles. Listen to music and watch television at low volume. Did you enjoy the animation? आपको एनिमेशन कैसा लगा? मज़ा आया? अच्छा लगा एनिमेशन? चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ए, टिक द करेक्ट आंसर्स। आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। 3 ऑप्शंस आर गिवन टू यू। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। मून, India Gate, Mars. Which is the correct answer? India Gate. India Gate is the part of our environment. Moon and Mars, they are far away from us. They are not the part of our environment. Number 2. Which of the following is a man-made environment? आपको अगेन 3 ऑप्शंस गिवन है। आपको बताना है इनमें से मैन-मेड इन्वायरमेंट कौन सा है। नाइल, थार डेजर्ट, मुंबई मोनोरेल। C option is correct. Mumbai monorail. Nile and Thar Desert, these are natural environment.
क्वेश्चन बी, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है और हर एक का आपको एक एक एग्जाम्पल बताना है। फर्स्ट वन, अ नेचुरल इन्वायरमेंट। आपको नेचुरल इन्वायरमेंट का एक एग्जाम्पल बताना है। फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर, ये सब क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है। नंबर 2, अ मैन मेड इन्वायरमेंट। आपको एक मैन मेड इन्वायरमेंट बताना है। ब्रिज, रोड, बिल्डिंग्स, ये क्या है? हमारे मैन मेड इन्वायरमेंट हैं। क्वेश्चन 3, अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। आपने बहुत सारे कॉजेज़ पढ़े हैं एयर पोल्यूशन के, पढ़े हैं ना? तो आपको कोई एक कॉज लिखना है, एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है। सैंडस्टॉर्म्स, वोल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। यू हैव टू राइट डाउन वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन सी, आंसर दीज क्वेश्चंस। Here are 2 questions. You have to write down answers of these questions in your notebook. First one, why do we change natural environment? हम natural environment को क्यों change करते हैं? We change natural environment for our own benefit. हम अपने फ़ायदे के लिए, comfortable life जीने के लिए natural environment को change करते हैं। Number 2, वाई शुड वी कीप आर इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन? हमें अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन क्यों रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए बेटा? येस, टू स्टे फिट एंड हेल्दी। वी शुड कीप आर इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन टू कीप आर सेल्फ हेल्दी। क्वेश्चन डी, थिंक एंड आंसर। आपको इस क्वेश्चन का आंसर सोचकर लिखना है। वाई शुड फैक्ट्रीज बी मेड अवे फ्रॉम लिविंग एरियाज? फैक्ट्रीज को लिविंग एरियाज से दूर क्यों बनाना चाहिए? यस, क्योंकि फैक्ट्री से क्या निकलता है बेटा? स्मोक निकलता है। वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है, और फैक्ट्री से हार्मफुल केमिकल्स वाला वाटर भी निकलता है जो कि रिवर्स में जाता है, नदियों में जाता है और वाटर को पोल्यूट करता है। तो फैक्ट्रीज शुड बी मेड अवे फ्रॉम लिविंग एरियाज टू अवॉइड एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन। नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम, द मोस्ट इंजॉयबल टाइम। आप सबको एक्टिविटीज़ करना पसंद है ना? यू ऑल लाइक डूइंग एक्टिविटीज़, है ना? तो हम आज की एक्टिविटी शुरू करें। आज हमारे इस चैप्टर में 3 एक्टिविटीज़ हैं। देयर आर 3 एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर। चलिए हम अपनी फर्स्ट एक्टिविटी शुरू करते हैं। बेटा, आवर फर्स्ट एक्टिविटी इज राइट अ स्लोगन फॉर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। यू हैव टू राइट अ स्लोगन। आपको एक स्लोगन लिखना है। देखिए, आई हैव अ शीट। मेरे पास एक शीट है, मैंने इस पर ड्राइंग भी किया है और स्लोगन भी लिखा है। क्या स्लोगन लिखा है मैंने? ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव द अर्थ। अब मेरे पास ऐसे ही प्रिपेयर्ड शीट्स और भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये शीट है, इस पर है से नो टू प्लास्टिक, ड्राइंग बनी हुई और लिखा है से नो टू प्लास्टिक। थर्ड एक और शीट देखिए, इस पर क्या लिखा हुआ है? सेव अर्थ सेव नेचर, और इस पर हमने ड्राइंग बना दी है, ट्री बना दिया, अर्थ बना दिया। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, आप स्लोगन लिख सकते हो, साथ में ड्राइंग बना सकते हो। और अगर आपका मन सिर्फ स्लोगन लिखने का है तो आप सिर्फ स्लोगन भी लिख सकते हो। जैसे ये मैंने लिखा है, लेट्स गो ग्रीन एज इट मेक्स इन्वायरमेंट क्लीन। ठीक है, एक और है मेरे पास स्लोगन लिखा हुआ, डोंट बी ग्रीडी इट्स टाइम टू बी ग्रीनी। तो आप चाहे तो स्लोगन लिखिए सिर्फ, और चाहे आप ड्राइंग बनाकर फिर स्लोगन लिखिए। Activity 2. Imagine your class wants to drive a clean your surroundings program in the neighborhood. Prepare an action plan for it. बेटा, अगर आप क्लीन योर सराउंडिंग्स, अपने नेबरहुड को साफ़ करने का कोई प्रोग्राम बना रहे हो, उसके लिए एक कोई अभियान चलाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप कौन कौन से एक्शंस लोगे वो आपने एक प्लान आउट अपने पेपर पर लिखना है और उसकी फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है। आपको अगर याद होगा तो कुछ दिन पहले क्लीन योर हाउस प्रोग्राम हमने किया था। आपने अपने घर की सफाई करते हुए हमें फ़ोटो क्लिक करके भेजी थी, याद है? हमने आपको कोलाज भी बनाकर भेजा था उसका।
तो अब आपको क्या करना है, आपको नेबरहुड की सफाई का एक प्रोग्राम बनाना है और उसके लिए आप कौन कौन से स्टेप्स उठाओगे वो आपने एक पेपर पर लिखकर मुझे भेजना है। और बेटा हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, आपने वो भी लिखनी है। कौन कौन सी बातें का हमें ध्यान रखना है बेटा? वी हैव टू वियर ग्लव्स एंड मास्क, हमें ग्लव्स और मास्क पहनने हैं। वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना है। एंड व्हेन वी कम बैक होम वी हैव टू वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर एंड वी हैव टू चेंज आवर क्लोथ्स। तो बेटा आपने ये सब प्रिकॉशंस रखनी है और अपने एक्शन प्लान में लिखना भी है दैट यू विल फॉलो दिस प्रिकॉशंस। बेटा आवर थर्ड एक्टिविटी इज टू मेक अ चार्ट ऑन टिप्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। आपको एक चार्ट बनाना है जिस पर आपको लिखना है कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन मीन्स टू सेव वाटर, टू यूज़ वाटर वाइजली। आपकी मम्मा आपको बताती है ना पानी वेस्ट नहीं करना है, आपकी मैम भी आपको बताती हैं। क्यों नहीं पानी वेस्ट करना? बिकॉज वाटर इज़ वेरी प्रेशियस, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर काउंट्स। तो हम किस तरीके से पानी को कंजर्व कर सकते हैं वो आपको टिप्स लिखनी हैं। ये देखिए मेरे पास एक चार्ट है, मैंने इस चार्ट पर कुछ टिप्स लिखी हैं। डू नॉट रन टैप वाइल ब्रशिंग टीथ, जब हम टीथ को ब्रश करते हैं तो हमें टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। यूज़ बकेट एंड मग टू बाथ इंस्टेड ऑफ शावर, हमें शावर लेने की बजाय नहाने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? बकेट एंड मग। डोंट वेस्ट लेफ्ट ओवर वाटर ऑफ योर वाटर बॉटल, यूज़ इट टू वाटर द प्लांट्स, हमारी जो वाटर बॉटल में पानी बच जाता है उससे हमें फेंकना नहीं चाहिए, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। किस लिए? टू वाटर द प्लांट्स। यूज़ वेस्ट वाटर ऑफ वाटर फिल्टर और एसी फॉर मोपिंग द फ्लोर, बेटा हमारे एसी से पानी निकलता है समर में, ऐसे ही हम वाटर फिल्टर इस्तेमाल करते हैं ना सब घर में, तो वहाँ से भी उसके एक पाइप से वेस्ट वाटर निकलता है। हमें उस वेस्ट वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका हम यूज़ कर सकते हैं घर की साफ़ सफाई में, टू मोप द फ्लोर। तो ऐसे ही आपको भी टिप्स लिखनी है एक पेज के ऊपर या एक चार्ट के ऊपर और उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजनी है। ठीक है बेटा? Values and life skill. Beta, what we have read in this chapter? We read about pollution, causes of pollution, and how can we take care of our environment. अब हमें किस चीज़ को फॉलो करना है ताकि हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रहे। हमें क्या यूज़ करना है? क्लॉथ बैग। Always use cloth bags for carrying things as they are environment friendly. आपको याद है हमने लास्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वी शुड नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग के बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो इन्वायरमेंट को गंदा करती हैं, उससे पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है अगर हम उसको बर्न करते हैं, और अगर उसको एनिमल्स खा लें उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने साथ क्या लेके जाना है मार्केट? क्लॉथ बैग। जब भी हम मार्केट जाएं हमें अपने साथ एक क्लॉथ बैग लेकर जाना है, बिकॉज क्लॉथ बैग से हमारा इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रहता है, और अगर इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन है तो हम हेल्दी हैं। तो टू स्टे हेल्दी वी शुड कीप आवर इन्वायरमेंट neat and clean. Take care of yourself. Meet you soon in the next video. Thank you. Bye.